right? Now we are going to see the convolution code, and uh, this is a very old code described in 1955, and this is a very popular error correcting code. Basically, we are having three types of error correcting codes. One is linear block code, second one is convolution code, and third one is turbo codes. So nowadays turbo codes are also very popular, but still convolution code was very popular and it was successfully used in all those technology of CDMA, GSM. So what is the basic difference between a linear block code and convolution code? Actually, in linear block code, the coded bit will always depend on the present bit, right? The main thing, the main difference is what that in LBC, the coded bit, present coded bit, will be depending on the present data bit, right? But in the convolution code, the present coded bit will depend on the present information bit as well as all those past possible bits, right? Which have been, for example, you can say that uh, if you are having total n bits in the convolution code, then you can say that this convolution code, the code bit will be depend on the present bit as well as all n minus 1 possible bits. So you can say that this convolution code is basically having, or this convolution encoder which is generating the convolution code should have a memory element, right? Should have a memory element. Why? Because it is depending on the present bit as well as all those past bits, right? So those, because of those past bits, you should have a memory element. And for this memory element means that either you will have flip flops or register kind of things, right? Register or shift register basically, right? Shift register kind of things in the encoder, right? So this is the main difference between linear block code and the convolution code. Linear block code is depending on the present bit, and the convolution code is depending on the present bit as well as the past bits. So this convolution encoder will certainly have memory elements, or you can say that it will have shift registers, right? So there is a term there is a term which is somewhat popular in convolution encoder, which is named as constraint length. Mind it is not a constant length, it is a constraint length, right? Constraint length should be equal to n, and basically this n will tell us the number of shift register in the convolution coder or convolution encoder, right? And then we can also have uh, some modulo 2 adders, right? Then some, we can also have some modulo 2 adders, and which will be named as small l. So L in any convolution encoder, we can have n capital N number of shift registers as well as small l number of modulo 2 adders, right? So I should see a particular encoder so that it will be clear to you what is the meaning of this n and l. So for example, we are having a convolution encoder. You can have such kind of convolution encoder. For example, this is dk, this is dk minus 1, and this is dk minus 2. So dk is the present symbol, and k minus 1 and k minus 2 are the past symbols, right? And from this place, you input is going to the shift registers, right? So here capital N is equal to 3. Basically, you are having 3 shift registers. One is this, right? The second one is this, and the third one is this. So total we are having 3 shift registers here. And the output code which is generated is designated as, for example, here you are using a modulo 2 adder, right? This modulo 2 addition means it is doing the modulo 2 addition of all these 3 bits, right? So this can be your first possible outcome, which can be written as vk comma 1. Similarly, you can have other modulo 2 adder,
you can have other modulo 2 adder, and in this modulo 2 adder basically we are having the sum of dk and the sum of dk minus 2, right? So this can be your second coded bit, right? So you can say the number of modulo 2 adders will decide that the length of the code, right? Because here you are using two modulo 2 adders. This is 1, this is 2. So the modulo 2 adders will decide the length of the code. This is 2-bit code. This is 2-bit code, right? So you can have any number of shift registers. It is not necessary that you are having these 3 shift registers. You can have any number of shift registers. You can have any number of modulo 2 adders. This is a specific diagram, but you can generalize it, right? You can have 3, 4, 5, 6, any number of modulo 2 adders. You can have any number of shift registers, and with the help of that complete encoder, you can generate some codes. And that those codes will be convolution code. Why? Because this particular coding will depending on the present bit as well as depending on the past bit, right? And for example, this is the input from where you can give the input data stream to the shift register. So for example, here we have taken the input data stream is 1 1 0 1 0, right? ये डेटा मैं यहाँ से इनपुट करा रहा हूँ, और फिर इन सारे शिफ्ट रजिस्टर की पोजीशंस को देखते हुए मैं देखूंगा क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं, राइट? सो जो आउटपुट कोड होगा, द आउटपुट कोड वो कैसे लिखा जाएगा? आउटपुट कोड विल बी vk1 vk2, right? This is for example for first shift. Now for second shift, again you will generate vk1 and vk2. So again you will write down vk1 vk2, again you will write down vk1 vk2. So this is for example first shift, this is for example second shift, and this is for example third shift. And now we have to see how many number of shifts are there. It will depend on the input data length, right? So we should solve this example to understand this convolution code in a better way, right? So ये एक्चुअली ना, ये दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस मॉडुलो 2 एडर है ना, ये इसका आउटपुट है। तो जैसे आपने पहला बिट अंदर डाला आपने, है ना, तो जो भी आउटपुट आया, क्योंकि ये vk1 है क्या, ये vk1 क्या है, ये vk1 है बेसिकली, vk1 इज व्हाट, vk1 इज द dk minus 2 x modulo 2 addition with dk minus 1 modulo 2 addition with dk, यही तो है। इन तीनों का modulo 2 एडिशन कर दिया है यहाँ पर मैंने। ये vk1 है, और vk2 क्या है, vk2 इज इक्वल टू dk modulo 2 एडिशन विद dk minus 2, ये है modulo 2 एडिशन। सो modulo 2 एडिशन बेसिकली इन 3 बिट्स का हो रहा है, यहाँ पर इन 2 बिट्स का हो रहा है। तो हर एक जो भी बिट्स इसके अंदर है उनका modulo 2 एडिशन करोगे तो कुछ ना कुछ तो आउटकम आएगा यहाँ पर, वही आउटकम एज आउटपुट हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है? मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको एक मिनट में भी, है ना। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हम उसको सॉल्व भी कर लेते हैं ताकि ये समझ में आए कि एग्जैक्टली कैसे कर रहे हैं इसको। सो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक मैट्रिक्स यहाँ मैं एक सिंपल वो बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक dk है, ये dk minus 1 है, ये dk minus 2 है, राइट? ऐसे लिख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि ये क्या है, ये है vk1 और ये क्या है vk2, ठीक है? ये पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे ये हम बना लेंगे तो आसान रहेगा हमारे लिए फिर। अब dk minus 1 dk minus 2 यानी कि ये सारे पोजीशंस इनिशियली क्या रहे होंगे, ये 0 0 रहे होंगे, मुझे 0 पे सेट करना पड़ेगा सबको, है ना। ये 0 0 रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 0 0, राइट ना। अब अगर आप vk1 की वैल्यू निकालिए इस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रीम के लिए तो क्या आएगी, 0 आएगी। vk2 की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। बट हमें ये तो इनिशियल स्टेज है, ये लेनी नहीं है, हमें लेना है तब जब हम इस पहली बिट को इसके अंदर डाल देंगे, राइट? पहली बिट को इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब पहली बिट इसके अंदर जब मैंने डाल दी तो dk की वैल्यू क्या हो गई, 1, इसका 0 यहाँ शिफ्ट हो गया और इसका 0 यहाँ शिफ्ट हो गया, एंड दिस 0 विल बी थ्रोन आउट, राइट? सो ये बन गया 1 0 0, राइट? मैं फिर से एग्जांपल रिपीट करता हूं। हमने 3 बिट का ये शिफ्ट रजिस्टर ले लिया है, इसकी ये बिट पोजीशन dk है, ये dk minus 1 है, dk minus 2 है। हमने इन तीनों को मॉडुलो 2 एडिशन करके यहाँ लिख दिया है, इन दोनों को मॉडुलो 2 एडिशन करके यहाँ लिख दिया है। अब इन दोनों के जो आउटपुट होंगे वो हमारे लिए कोडेड बिट होंगे, कन्वोल्यूशन कोड होगा, राइट?
और डेटा इनपुट भी तो चाहिए, किस बिट को कोड कर रहे हो आप, मैं इस स्ट्रीम को कोड करना चाहता हूँ, 11010 को कोड करना चाहता हूँ, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एक बिट करके इसके अंदर डालूंगा, ठीक है, और इन तीनों शिफ्ट रजिस्टर की स्टेट्स देखूंगा क्या है उस समय इनके अंदर, जो भी इनके अंदर वैल्यू होगी उसी का मैं एक्सॉरिंग करके और यहाँ पर आउटपुट कोड निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने जब पहली बिट अंदर डाली बीके में, तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर है ना, तो ये जब 1 आएगा तो इस 0 को इधर शिफ्ट कर देगा, और जब ये 0 इधर आएगा तो ये वाला 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा, और फिर ये वाला 0 क्या हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। सो जो अब इनकी मान लीजिए k इज इक्वल टू 1, पहले इटरेशन पर जो इनकी स्टेट बनी वो क्या बनी, 1 0 0, ठीक है। अब मान लीजिए मैं अगली बिट भी अंदर डालता हूँ, मैं कोडेड बिट बाद में निकाल लूंगा एक साथ ही, मैं अगली सेकंड वाला 1 अंदर डालता हूँ, तो जब सेकंड वाला 1 यहाँ आएगा तो ये वाला 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर पहले क्या था 0 वो यहाँ चला जाएगा, और ये बाहर इस ये वाली बिट बाहर चली जाएगी, राइट। सो जब सेकंड वाला 1 डालोगे तो डी के तो 1 हो जाएगा, ये वाला 1 यहाँ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। फिर k इज इक्वल टू 3 पर आ जाता हूँ मैं, अगली बिट क्या है 0, अब 0 डालूंगा यहाँ पर, तो जब यहाँ पर 0 डालोगे तो ये वाला 1 यहाँ चला जाएगा, ये वाला 1 यहाँ चला जाएगा, यहाँ वाला 0 बाहर चला जाएगा, राइट। सो ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, और बिट कौन सी डाली आपने, 0, राइट। अब आया मैं k इज इक्वल टू 4 पर, अब अगली बिट क्या है, फिर है 1, राइट। अब 1 फिर इसके अंदर डालेंगे, तो जब 1 अंदर डालेंगे तो ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 बाहर चला जाएगा, और बिट कौन सी डाली अंदर, 1, तो 1 0 1 आ जाएगा, फाइन। फिर लास्ट बिट क्या है 0, वो अंदर डालेंगे, जब 0 अंदर डालेंगे तो वो k इज इक्वल टू 5 हो जाएगा मान लीजिए, तो 0 अंदर डालेंगे तो ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम कोशिश ये करते हैं हमेशा कि जैसे शिफ्ट रजिस्टर 0 0 0 से शुरू किया था, इटरेशन तब तक चले जब तक कि इनकी पोजीशन 0 0 0 ना हो जाए, राइट। हम यहाँ स्टॉप नहीं करेंगे अपने आप को, अभी शिफ्ट रजिस्टर चलता रहेगा, ठीक है। तो 0 1 0 आ जाएगा, तो अगला k इज इक्वल टू 6 के बारे में क्या कहेंगे हम लोग, 0 1 0 के बाद क्या होगा, ये वाला 1 ये वाला 0 यहाँ आएगा, ये वाला 1 यहाँ आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि सारे बिट्स तो खत्म हो चुके हैं तो 0 ही आएगा, राइट। फिर इसकी अगली बिट यानी k इज इक्वल टू 7 में क्या होगा, मैं साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसको फ्रेश लिख दूंगा यहाँ पर, साइड में लिख देंगे तो क्या आएगा, ये वाला 0 यहाँ आएगा, ये वाला 0 यहाँ आएगा, और पीछे से भी क्या आएगा 0, यानी कि लास्ट बिट क्या आ जाएगा 0 0 0, यहाँ रुक जाएंगे, ठीक है। दिस इज द एंड पोजीशन, दिस इज द एंड पोजीशन, राइट। अब यानी कि ये स्टेट्स हैं जिनसे ये पूरे शिफ्ट रजिस्टर गुजरेंगे। मैं फिर से एक बार इसको साफ साफ बनाता हूँ, ठीक है, ये न्यूमेरिकल तो नहीं बिगाड़ूंगा मैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। This is for example dk, this is for example dk minus 1, this is for example dk minus 2, right। तो मैं फटाफट वैल्यूज लिख देता हूँ, 0 0 0, then we are having 1 0 0, then we are having 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0, zero, 0, 1, and the last one is 0 0 0। बेटा क्या ये चीज समझ में आ गई सभी को, कोई डाउट है यहाँ तक, प्लीज रिपीट, 0 0 0, वेरी गुड, ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा सभी को, जरा बताना मुझे। सर हाँ सर बिट मतलब इनपुट में बिट्स तो 5 है, तो हमने 7 तक क्यों ली? एक्चुअली जो कन्वोल्यूशन इनकोडर है इसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी 0 0 0, ठीक है बेटा, तो हम तब तक ये कन्वोल्यूशन शिफ्टिंग चलती रहेगी जब तक यही स्टेट वापस नहीं आ जाती, ओके सर, है ना, बस ये ध्यान रखना है मुझे। नंबर ऑफ बिट्स कितने भी हो, विल स्टार्ट विद 0 0 0 एंड विल एंड विद 0 0 0, ठीक है। हाँ। बाकी शिफ्टिंग समझ में आ गई, कोई डाउट इसमें? यस सर, ये आ गई। तो यहाँ पर आ गए, अब हम इसके करस्पॉन्डिंग कोड लिख सकते हैं VK1 और VK2, राइट।
एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। डेटा बिट क्या है? 1 1 0 1 0, राइट। अब स्टार्टिंग क्या था? 0 0 0, ये हमारी शिफ्ट रजिस्टर की स्टार्टिंग थी। अब पहला k इज इक्वल टू 1 पर ये गया 1 अंदर, राइट, ये पहला 1 अंदर गया। जब पहला 1 अंदर गया तो डीके की पोजीशन क्या हो गई? 1, और बाकी दोनों क्या हो गए? 0 0 0, तो 1 0 0, राइट। अब जब अगला 1 अंदर जाएगा तो डीके की पोजीशन 1 हो जाएगी, ये वाली पोजीशन शिफ्ट होके यहाँ जाएगी, ये वाली पोजीशन शिफ्ट होके यहाँ जाएगी, है ना भाई। ये वाला 1 अंदर जाएगा जब, तो इसके अंदर जो पहले से 1 पड़ा था वो कूद के यहाँ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ जाएगा, और यहाँ का जो 0 है वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है कोमल? हाँ, अब ऐसे ही लाइन से करते चले जाइए आप। अल्टीमेटली अगर आप सिमेट्रिसिटी से देखें तो ये बहुत ऐसे सिंपल सा लगेगा कि 0 0 0 ये आ गया। अब ये वाला 0 यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ये वाला 0 यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, और ये पुरानी जो भी बिट डाल रहे हो आप वो यहाँ डाल दो। ठीक है, फिर ये अगले टर्म में ये वाली बिट यहाँ, ये वाली बिट यहाँ, ये वाली बिट यहाँ डाल दो, तो ऐसे आ जाएगा बिल्कुल समझ में। ओके बेटा, कोमल, थैंक यू। सो हम लोग ना आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो हम लिखना चाहते हैं कोड अब, है ना। तो ये ऐसे लाइन खींच लेता हूँ मैं ताकि बिल्कुल अलग अलग हो जाए। Okay, now we'll start with this k is equal to 1, right, because 0 0 0 तो इनिशियल कंडीशन थी। तो आप देखिए, अगर मैं vk1 की वैल्यू देखता हूं तो vk1 is it is the modulo 2 addition with all these 3 digits, right? So 1 0 0 क्या आएगा आउटपुट? 1, right? Very good. अब vk2 क्या आएगा? It is a modulo 2 addition between these 2 bits, right? So dk क्या है? 1, और dk minus 2 क्या है? 0, तो 1 0 का modulo 2 addition क्या आएगा? 1। समझ में आ गया? और सामने सारे डिजिट्स भी लिख दिए हैं। वेरी गुड। तो अभी हम लोग कर लेते हैं फटाफट, सभी लोग करेंगे मेरे साथ। सो ये 1 1 0 0 0 ये 0 आएगा, इन दोनों का करेंगे तो 0 1 आएगा, फिर इन दोनों का करेंगे तो 0 आएगा, इन दोनों का करेंगे तो 0 1 आएगा, इन दोनों का करेंगे, इन तीनों का करेंगे तो 0 आएगा, इन दोनों का करेंगे तो भी 0 आएगा, इन तीनों का करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों का करेंगे तो 0 आएगा, इन तीनों का करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों का करेंगे तो भी 1 आएगा, इन तीनों का करेंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा। फाइन। क्या सभी लोग इन ए बिट्स तक पहुंच जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं सर। वेरी गुड। कुछ करना नहीं है, सिंपल मॉडुलो एडिशन किया, तीनों का किया है तो VK1 मिल गया है, केवल दोनों एंड वालों का किया है तो VK2 मिल गया। ये फॉर्मूला हमको गिवन होगा, कैसे? ये कोई फिगर गिवन होगा, राइट। हम निकाल लेंगे कि VK1 क्या है और VK2 क्या है। जितने मॉडुलो 2 एडर जिसका मॉडुलो 2 करना होगा उसका कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम बिल्कुल अपना कॉन्वोल्यूशन कोड लिखने के लिए रेडी हैं। नाउ वी कैन राइट डाउन अवर कॉन्वोल्यूशन कोड। आयुष कुछ कह रहे हो बेटा? बताओ। यस, नाउ द कन्वोल्यूशन कोड कैन बी रिटन एज 1 1। मैंने बोला था कैसे लिखा जाएगा? VK1 VK2 VK1 VK2। तो ये पहला कोड हो गया 1 1। दूसरा कोड क्या होगा? 0 1, राइट, 0 1। तीसरा क्या होगा? 0 1। चौथा क्या होगा? 0 0। फिर क्या होगा? 1 0। फिर क्या होगा? 1 1। फिर लास्ट में क्या होगा? 0 0। ये आपका कोड आ गया। ठीक है, फाइन। So yes, we got the code 1101010010111100. This is the code. यही कोड बुक में भी सॉल्व करके निकाला है। 11010100011100। यही कोड हमने निकाल लिया है। So this is our convolution code, and because